Good afternoon, students. Hope so you all are good and fit at home. Razira, in last class, we start the new chapter force and pressure. Okay, we discuss what is force. ठीक है. Effects of force. One effect is force can produce motion. Okay. Second is force can stop motion. Third is force can change the speed of motion. Force can change the direction of motion. Force can change the speed, shape, size of an object. Okay, Raje. So there are some photographs showing the effects of the force. Okay, types of force. One is contact. Sorry, Hanji. First is contact forces or types of forces. How we classify the forces on the basis of interaction of the objects with one another. Interaction of the objects with one another, we classify the force into two types. One is contact force, the second one is non-contact force. Firstly, what are the contact forces? Contact forces meaning in which the interacting objects are in physical contact, meaning interactive objects are in physical contact with each other or with one another. This may be with the connectors like stick of piece, like a piece of paper. Maybe they are not directly in physical touch, they use some connectors for making a physical contact, like stick of piece. किसी को हम बुलाने के लिए या किसी चीज़ को हम क्या है बाहर को निकालने के लिए स्टिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. किसी चीज़ के लिए हम पेपर पीस यूज़ कर रहे हैं, डैट इज़ ऑल्सो इन फिजिकल टच, बट हम उसी के लिए क्या है कि कनेक्टर इन बिटवीन यूज़ कर रहे हैं. And the non-contact forces. Non-contact forces, the forces which do not make a physical contact with the body and act through a space, are called non-contact forces. The forces in which there is no physical contact, even the action is through a space, or you can say through a distance. Okay, we call that no non-contact. जैसे non meaning क्या होता है? No. नॉन से शो हो रहा है. नॉन का मीनिंग क्या होता है? नो. मीनिंग जिनमें नो फिजिकल कंटैक्ट है. फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स में हमारा कोई भी फिजिकल कंटैक्ट नहीं होता ना. ओके रजी. नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द फर्स्टली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रदर. जो हमारे पास क्या है, टाइप्स किसकी हैं जी? कंटैक्ट फोर्सेज हैं. फर्स्टली जो कंटैक्ट फोर्सेज हैं उनकी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जिनमें से फर्स्ट टाइप क्या है? एज ए मस्कुलर फोर्स. फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास? मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स क्या होती है? अगर मैं आपको डिफाइन करूँ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल ऑफ आवर बॉडी इज टर्म्ड एज मस्कुलर फोर्स. एनी फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी वी कॉल इट मस्कुलर फोर्स. फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कैरी ब्रिक्स है ना, बाय यूजिंग देयर मस्कुलर फोर्स. he use his muscular force for carrying bricks. Many other example, you carry your bag, school bag, by using your muscles and a muscular force. So many examples are there for muscular force. Okay, the second type is friction. Friction क्या होता है? The force that opposes the motion of an object is called friction. Friction क्या होता है? Any force that oppose the motion को क्या कर रही है? Oppose, meaning opposite है उसके. For example, a wall rolling around a wall rolling along a ground gradually slow down and finally comes to rest. If any wall moves on a ground, after some time the wall starts flowing down its motion, or you can say it stops. Why? Due to the friction produced by the ground. So friction is the opposite to the motion. Friction is a type of force that acts opposite to the motion. ठीक है, to slow down the motion, or you can say finally any object comes to rest after friction. Let's say the next type is mechanical force. Mechanical meaning machinery, in which we use machinery. Mechanical force में क्या होता है? राजे we use machinery. कहते हैं the force produced by the machine. Force produced by any type of machine, we call it mechanical force. For example, engine of vehicles runs with the help of fuel एंड मेक्स कार मूव. किसी भी आप मशीन की हेल्प ले लो, उसमें क्या जो फ्यूल डाला जाता है, जो इंजन्स डाले जाते हैं, वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? राजे लाइक जो जीवीसी थी आपके पास, वो किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? उस चीज़ की मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं. और आप कह सकते हैं कि जो मशीनरी
होती है, जो मैकेनिकल फोर्स होता है, उसमें टोटली क्या है, जो मशीन्स ही यूज़ की जाती हैं, जो मशीन्स हैं वो अपनी ओर से प्रोडक्ट्स बना कर दे रही है, अपनी ओर से रिएक्शन कर रही है। रोबोट्स, यूज़ ऑफ रोबोट्स इज़ ऑल्सो मैकेनिकल फोर्स ना, उसमें हमारी कोई मसल पावर नहीं रही, डेट इज़ अ मशीन। ओके रजे, इफ़ वी नॉट टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द नॉन कंटैक्ट फोर्सेज, फर्स्ट टाइप इज़ मैग्नेटिक। फर्स्ट टाइप इज़ मैग्नेटिक फोर्स। रजे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट, any type of the force that is produced by a magnet is called a magnetic force. This is magnet na, the force produced by this magnet is called magnetic force. This magnet can easily attract the magnetic substances, ठीक है, like metals, ठीक है. So the force that is produced, the attraction is a result of the force na, and this force is we call magnetic force. Example भी वही है, कहते हैं magnet attracts magnetic materials like metals using magnetic force. Okay राजे. Second is electrostatic force. Now what is electrostatic force? The force exerted by a charged body. कोई भी फोर्स जो कि एक चार्ज बॉडी से क्या है, एक्सर्ट किया जाता है ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी. देखिए बात ध्यान में रखनी है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी, वो फोर्स जो एक्सर्ट किसके द्वारा किया जाएगा, बाय एनी चार्ज बॉडी ऑन अनदर आइदर चार्ज और आइदर अनचार्ज बॉडी इज नॉन एज electrostatic force. For example, when we rub a comb, or you can say when we rub a comb or scale on a dry hair. Firstly, comb or scale, when we rub it on a dry hair, it got charged. It gets charged, and after that it attract. If we have some tiny piece of paper, a comb easily attract these pieces of paper. Rather, this is a simple activity. You can do it at home. Rub your comb with dry hair. Make sure hairs should be dry. If you rub comb with the dry hairs and you have some piece of paper on the table, after rubbing the comb on your dry hairs, try to check either comb attract piece of paper or not. Surely the comb will attract the piece of papers. And the next type is gravitational force. What is a gravitational force? Meaning gravity, the force related to the earth. The gravitational force is the force with which any two masses or objects pull each other. जिसमें क्या है, कोई भी two masses, two objects एक दूसरे को pull कर रही हैं. For example, gravitational force of earth keeps us bound to the earth. अर्थ का gravitational force होता है ना, वो हमें बॉन्ड करके रखता है अर्थ की ओर. जैसे इसकी एक कॉमन एग्जांपल ले रही हूँ मैं, जो अर्थ का हमारे पास क्या है फोर्स होता है. देखो ग्रेविटी का क्या है, जो कोई भी ट्री है, जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया है, उसके फ्रूट्स ऑलवेज नीचे क्यों आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते, ड्यू टू ग्रेविटी ना. बिकॉज अर्थ का एक अट्रैक्शन है अपना, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या है, खींच कर रखती है. डैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके राजे. सो दिस इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स. So this is all about the types of the forces. Next term is pressure. Raze. Okay, now what is pressure? कहते हैं pressure is defined as the force acting on a unit area of the surface. Pressure is defined as the force acting on the unit area of the surface. So pressure is equal to force per unit area. ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट्स, दैट एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट्स, वी कॉल इट प्रेशर. ओके रजे, वी कॉल इट प्रेशर. सो नाउ प्रेशर और एरिया का काफ़ी आपस में क्या एक रिलेशन होता है. नाउ प्रेशर एंड एरिया, ठीक है. फर्स्टली क्या रिलेशन है इनका, कहते हैं व्हेन वी इंक्रीज द एरिया ओवर फोर्स इज अप्लाइड, ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड द प्रेशर डिक्रीजेज. व्हेन एवर वी इंक्रीज द एरिया, द फोर्स अप्लाइड, हमारे पास एक एरिया है जिस पे क्या है फोर्स अप्लाई हो रहा है. व्हेन एवर वी इंक्रीज दैट एरिया, जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, द प्रेशर डिक्रीज. जितना एरिया इंक्रीज करेंगे प्रेशर उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा. अ डिक्रीज इन कंटैक्ट एरिया इंक्रीजेज द प्रेशर. देखो अगर हम कंटैक्ट एरिया को डिक्रीज करेंगे देन व्हाट, प्रेशर विल इंक्रीज. मीनिंग ऑपोजिट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर एरिया फोर्स जिस पे एक्ट कर रहा है वो एरिया इंक्रीज होगा देन प्रेशर विल डिक्रीज. इफ द एरिया डिक्रीजेज देन प्रेशर विल increase. Okay Razi. So there are some
day-to-day activities on which pressure and area. We can study the example of pressure and area. कहते हैं the width of straps of the school bag and suitcase is increased to reduce the pressure while carrying them. देखो जो हमारी क्या होती है स्ट्रैप्स होती हैं बैग कैरी करने की वो ज़्यादा क्या है लॉन्ग होती हैं, क्यों इंक्रीज़ क्यों की जाती है उनकी विड्थ, ठीक है, बिकॉज जो हम जब उसे कैरी करें ना तो हमें क्या है प्रेशर कम लगे, हम इजीली क्या है कैरी कर सकें. द व्हील्स ऑफ द मिलिट्री टैंकर, जो मिलिट्री टैंक होते हैं रजिया आर्मी के टैंक होते हैं इधर मिलिट्री टैंक होते हैं, उनके नीचे जो व्हील्स लगे होते हैं ना तो वो क्या है ब्रॉड उनको किससे कवर किया जाता है ब्रॉड रबर से, ब्रॉड रबर स्ट्रिप से. क्यों? सो डैट दे डू नॉट सिंक इन द सैंड और स्नो, क्योंकि जब उन्हें ब्रॉड रबर से कवर किया जाता है तो वो सैंड और स्नो में क्या है सिंक नहीं होते. रीज़न क्या होता है राजे, क्योंकि जो ज़्यादा रबर स्ट्रिप है ना तो उसका जो एरिया इंक्रीज़ कर दिया जाता है जिससे क्या है प्रेशर कम लगता है और वो क्या है स्ट्रिप क्या हम कहते हैं सिंक नहीं होते. कहते हैं इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर ब्रॉड हील्स वाइल वॉकिंग ऑन अ सॉफ्ट सरफेस. जब भी आप कभी मोस्टली गर्ल्स को हील का ज़्यादा होता है क्रेज़ है ना, तो जब हम सॉफ्ट ग्राउंड पे या तो सॉफ्ट सरफेस पे वॉक कर रहे हैं, अगर एक आपके हील पाई हुई है ज़्यादा लॉन्ग, एक क्या है थोड़ी सी क्या है आपने ब्रॉड हील पहनी है, तो आप कंफर्टेबल किस में रहेंगे जो आपकी ब्रॉड वाली हील है एज़ कंपैरिजन टू आपकी जो लॉन्ग हील होती है और जो बहुत ही एक हम कह सकते हो थिन हील होती है ना उसके कंपैरिजन यू कैन ईजिली और कंफर्टेबली वॉक विद द ब्रॉड हील. ओके राजे. कहते हैं एलिफेंट्स एंड वियर्स हैव ब्रॉड फीट टू हेल्प देम टू वॉक ऑन सॉफ्ट सरफेस विदाउट फॉलिंग. जो एलिफेंट्स होते हैं जो वियर्स होते हैं उनके जो फीट होते हैं ना वो स्पेशल इसीलिए बने होते हैं कि ब्रॉड इसीलिए होते हैं. देखा है ना कभी किसी ने एलिफेंट का फीट ऐसे ब्रॉड होता है, ठीक है, और ऐसे ही क्या है बड़ा फीट होता है ब्रॉड, ताकि वो क्या है जो ग्राउंड और सॉफ्ट हमारे पास क्या है सरफेस है उस पर क्या है बिना गिरे हुए क्या है आगे जा सके. कहते हैं कैमल्स है ब्रॉड फीट, कैमल्स के भी ब्रॉड फीट होती है सो डैट दे कैन ईजिली वॉक ऑन द sand. Okay Razi, next topic is atmospheric pressure. Okay, we will discuss this topic in next class. Hope so you will understand it. Thank you. If you face any problem you can message me anytime.